Hi everyone, I'm Pankil Priya and I'm back with my next video. Today we are going to take up Forms of Business Organization, Chapter 2 of 11th Business Studies, and the topic for today is Cooperative Society. Cooperative society needs voluntary association of people, that is voluntary members are required, minimum 10 number of people are required. They become the members of the society. They contribute capital and they have to register themselves as per Societies Act of 1912. In 1946 December, Amul was started. How did Amul start? There was a Polson dairy in there was a Polson dairy in Gujarat, and it used to supply, the middlemen used to take products from the farmers of Polson dairy and supply to the Bombay government. Now what happened, the farmers after some time realized that they were not getting their due share. The middleman was earning more than what they were getting in return. That was happening in Kheda district, okay, of Gujarat. So what they did was, they immediately eliminated the middlemen and they themselves took charge and started selling their product themselves directly to the Bombay government. Now when this happened, they realized that they can earn more by eliminating the middlemen, and the products were reaching the consumers at the right price, that is reasonable price, and in the righteous manner. So they formed a cooperative society in December 1946, called it Amul. It was established in Anand, and that's how the trend of cooperative society came into existence. So we'll start with cooperative society. The word cooperative means working together with others for a common purpose. So when you work together for a common purpose, generally this is, we call it in the colloquial language. एक आम भाषा में जब हम बात करते हैं ना, तो हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, अरे यार मेरे साथ कोऑपरेट करना, वॉलंटरी काम करना, इकट्ठे मिलके काम करते हैं ना, सो वो कोऑपरेटिव है. तो वही चीज़ कॉमन पर्पस के लिए जब मिलके काम करते हैं तो कोऑपरेटिव वर्ड आ जाता है. लेकिन जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो आपकी डेफिनेशन क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है? It is voluntary association of persons who join together with the motive of welfare of the members. कैसी एसोसिएशन है? वॉलंट्री. वॉलंट्री का मतलब क्या है? कोई आपको फोर्स नहीं करता. एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल और पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल. व्हाई दे वर्किंग? दे एलिमिनेट द मिडलमैन एंड दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और पीपल, और दे वर्क विद नॉट द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट but giving benefits to the society. It is compulsory to register under Cooperative Society Act 1912, like I've already told you. And the process of setting up cooperative society is very easy. सबसे पहले members कितने चाहिए होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, we need at least 10 adult members, 10 adult people. The capital is to be of the society is raised from the members through issue of shares. They contribute the capital, shares raise करते हैं, अपने अपने हिस्से के पैसा देते हैं, उसे कैपिटल रेज की जाती है, उसे शेयर्स निकाले जाते हैं, हर बंदे को उसको शेयर होल्डर बनाया जाता है. बल्कि इनकी मैनेजमेंट बहुत क्लियर होती है, इनकी मैनेजमेंट कमेटी होती है, हर बंदे के पास वन वोट और वन मैन वन वोट, यानी हर बंदे के पास एक वोट होता है. दे हैव द राइट टू वोट. हर बंदा, जो आप जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स ले रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप कौन सी कास्ट के, क्रीड के, रिलीजन के, सब कुछ छोड़ के अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं तो आपके पास वन मैन वन वोट होगा और आप आसानी से उस सोसाइटी में अकॉर्डिंगली वोट कर सकते हैं. So the capital of society is raised from its members through issue of shares. आप शेयर होल्डर बन जाते हैं. Distinct legal entity. कोऑपरेटिव सोसाइटी की अलग पहचान है फ्रॉम इट्स मेंबर्स. अगर 10 मेंबर्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अपने नाम पे सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड करती है. इट कैन स्यू, इट कैन बी स्यूड. ये सारी चीज़ें सेपरेट लीगल एंटिटी में आती है, क्योंकि सोसाइटी गेट्स डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन. Now, what was the major reason? What was the drive behind why people actually talked about having a cooperative society? I've just given you the example. The drive behind was to protect the economic interest of the consumers and to eliminate the middlemen. So cooperative society need to protect the economic interest and exploitation in the hands of the middlemen. Middlemen के हाथों से जो लोग थे, members थे, जब उनको exploit किया जा रहा था, misuse किया जा रहा था, उनको कम share मिलता था. Like I gave you example of Amul, the farmers were getting less share and the middleman was earning more. तो ऐसे में जब हम एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं तो जब मिडलमैन को हटा देते हैं, वो उसका पर्पस, उस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी. आते हैं फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सबसे पहले वॉलंटरी मेंबरशिप. वॉलंटरी मेंबरशिप मतलब कोई आपको फोर्स नहीं करता.
मेंबरशिप इज वॉलंटरी, अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन एंड फ्री टू लीव एनी टाइम, जब आपका मन करे आप ज्वाइन कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं. Person is required to serve notice. Yes, you have to serve the notice. That means you have to tell in advance. Written notice देना पड़ता है मैनेजमेंट कमेटी को कि हम भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि मिनिमम 10 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं. तो या तो हम, अगर हमारे पास हो सकता है 10 से 15, 15 से 20, 50 मेंबर्स भी हो जाए, लेकिन अगर उनमें से 10 के अलावा में से जो भी नेक्स्ट 40 मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी अगर छोड़ के जाता है तो ही और शी हैज़ टू सर्व द नोटिस. उसको नोटिस देना पड़ता है कि हाँ जी मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़ के जाना चाहता हूँ. मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर. आप कोई भी क्रीड, रिलीजन, एनीथिंग यू टॉक अबाउट, द membership is voluntary and it's free. Nobody is forced with anything at all. Next is legal status. I just now told you. Registration is compulsory according to separate identity concept. Like I told you out here, इसकी separate legal entity होती है और separate legal entity मिलते ही cooperative society अलग हो जाती है और जो members हैं वो अलग हो जाते हैं. Members अपने नाम पे जो काम करते हैं वो करते हैं. वो कोई भी डिसीजन कोऑपरेटिव सोसाइटी का है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे नहीं ले सकते, क्योंकि सारा डिसीजन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना है तो वो अपने पर्सनल नाम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदेंगे, क्योंकि वो सोसाइटी ने यूज़ करनी है. तो कोई भी चीज़ है, किसी को सू करना है, वो पर्सनल नाम से नहीं कर सकते. दे हैव टू डू बाय द नेम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है. So registration is compulsory and that is when you talk about the cooperative, ये लिखा है registration is compulsory, accords नहीं, according to it accords as a separate legal entity. इसकी separate legal entity होती है, पहचान होती है, which is distinct from its members. Society can enter into contract, आप contract कर सकते हैं, property hold कर सकते हैं, sue हो सकते हैं, can be sued. सेपरेट लीगल एंटिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द एंट्री और एग्जिट ऑफ इट्स मेंबर्स. आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं फर्क पड़ेगा किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, क्योंकि उसकी अलग पहचान है, वो पहले रजिस्टर्ड हो चुकी है. तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. इसी वजह से अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी जो है, हम क्या कहते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपने मेंबर से अलहदा है, अलग है. लिमिटेड लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी ऑफ द members of the cooperative society is limited to the extent of capital contributed by them. Beyond that means उनका घर बार नहीं बिकता, unlimited liability नहीं है. Liability of members of a cooperative society is limited to the extent of capital contributed by them, so it is little less risky, or riskless is a better word. So there is no risk involved when you become a member of the cooperative society. Control किसके हाथ में होता है, मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट कमेटी होती है, और हर बंदे के पास वन मैन वन वोट होता है. इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड मैनेजमेंट कमेटी. ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, पूरे 10 के 10 हो सकते हैं, एनीबडी. The right to vote gives the members chance to choose the members who will constitute the managing committee. कौन लोग होंगे, and then cooperative society democratic character. So cooperative society basically democratic भी है. क्यों है democratic? क्योंकि ये of the people and for the people है. जो members हैं वो ही committee choose करते हैं और हर एक member के पास one man one vote होता है. So they can drop in any kind of suggestion. जहाँ पर भी कहीं voting की बात आती है, कोई भी चीज़ है, जब सबकी consensus लेनी होती है, so people can drop in their own vote according to that. Service motive. The basic idea behind cooperative society is that the purpose is it lays emphasis on the values of mutual help and welfare. So motive क्या है? The motive of service dominates its working. If any surplus is generated as a result of operation, it is distributed among the members as dividend, of course in conformity with the bylaws of the society. तो मतलब क्या है, जब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बिल्कुल भी मोटिव नहीं होता है. दे सर्व द सोसाइटी एंड सर्व करते हुए जब अगर कोई प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट एज डिविडेंड. डिविडेंड क्या होता है, जब शेयर्स पे आप कोई कमाई करते हैं तो उसको डिविडेंड कहा जाता है. वो डिविडेंड के तौर पे आपको डिक्लेयर हो जाता है, प्रोवाइडेड सोसाइटी के बाईलॉज में वो सारा कुछ लिखा हो. सो द मोटिव इज बेसिकली टू प्रोवाइड म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर. Profit is not the major motive, but if it is there, it can be distributed as dividend. Okay, now we are starting with merits of cooperative society. So the first merit of cooperative society is equality in voting rights. Like I've already told you, one man, one vote. So the principle of one man, one vote governs a cooperative society irrespective of amount of capital contributed. आपने कितने भी shares लिए हैं, जितने मर्जी आए shares ले लो, आपका one man, one person will always hold one vote, right? Each member has equal voting rights. So you have your equal voting rights, and that's how you work in the cooperative society. Minimum number of members required is 10.
First point. Second point, liability is limited to the capital contributed by you. Liability of members of cooperative society is limited to the extent of their capital contribution. Personal assets are therefore very, very safe. Second point, no personal liability, no unlimited liability. Already we have discussed. Stable existence. Death, bankruptcy or insanity of members do not affect the continuity. It remains unaffected. Why? Because see, if you have minimum number of 10 members, any more members, any extra members, anyone leaves, dies, becomes insolvent, lunant हो जाता है, पागल हो जाता है, lunacy हो जाती है उसको, तो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, अगर किसी को अचानक से कुछ हो जाता है एंड दे कैन गेट वन मोर मेंबर टू मेक द मेजर मैनेजिंग कमेटी जो अगर रिक्वायर्ड है. अदरवाइज मिनिमम जब 40-50 लोग हैं तो वो 10 मेंबर्स के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं सारे ही वेलकम है, सारा कुछ ठीक है. 10 मेंबर्स होने ज़रूरी है. तो अगर 50 में से 49 रह गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. राइट. इकोनॉमी इन ऑपरेशन. द मेंबर्स जनरली ऑफर ऑनररी सर्विसेज टू द सोसाइटी. अब ऑनररी सर्विसेज का मतलब क्या होता है? क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है म्यूचुअल वेलफेयर या वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करती है, अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं करती है. तो बहुत क्लियर होता है कि जो लोग वहाँ पर काम करने जाते हैं जिस भी तरह का, पहले तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉब्लम होती है कि बहुत वो हाई लेवल के प्रोफेशनल मैनेजर्स नहीं रख सकते. मान लीजिए रख भी दिया तो उनकी सैलरी नहीं अफोर्ड कर सकते. तो क्या होता है, मेंबर्स खुद ही अपनी सर्विसेज देते हैं जिस जिस चीज़ में उनको नॉलेज होती है. तो जितनी नॉलेज होती है उतनी सर्विसेज देंगे ना. तो ऑनररी सर्विसेज होती है, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करते. तो क्या हो जाता है, मेंबर्स जनरली ऑफर ऑनररी सर्विसेज टू द सोसाइटी एज देयर इज एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन. दो चीज़ें हो गई, पहली ऑनररी सर्विसेज ए और देयर इज़ नो मिडलमैन बी. सो रिस्क ऑफ डेट इज़ ऑल्सो लोअर बिकॉज ये लोग ज़्यादा बिजनेस को बहुत हाई फाई तरीके से नहीं करते, तो उधार नहीं उठाते हैं. तो कंपैरेटिवली जो इनका सामान होता है वो भी सस्ता होता है और चीज़ें जो होती हैं वो कम कॉस्ट में ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस होती है, या जो भी उनकी कॉस्ट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस आती है. नेक्स्ट आते हैं सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डेमोक्रेटिक इन नेचर. हमें पता है ये डेमोक्रेटिक है, तो इसको कौन सपोर्ट करता है? गवर्नमेंट सपोर्ट करता है. कैसे? वो लो टैक्सेस, इनसे टैक्स रेट कम लेते हैं. जैसे इनकम टैक्स की बात करो तो पूरी इनकी इनकम ही कम होती है, टैक्स क्या होना इनका. उनको सब्सिडीज़ दे देते हैं, इंटरेस्ट रेट पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं. ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड किया जाता है. तो ऐसे में क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट से इनको सपोर्ट मिलता है. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑलवेज फील बेटर व्हेन बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट. तो जिस भी स्टेट में होती है या चाहे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जहाँ पे जिसके भी अंडर हैं, दे एंजॉय दी लॉट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट. नेक्स्ट, ईज ऑफ फॉर्मेशन. आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ 10 मेंबर्स रिक्वायर्ड. रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है बट बहुत ज़्यादा सिंपल है. और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर आपने अपने आप को रजिस्टर करना है. काम खत्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू होगी. कंग्रेचुलेशन, 10 मेंबर्स थे आप. लिमिटेशन सबसे बड़ी, लिमिटेड रिसोर्सेज. क्यों? पैसा लिमिटेड होता है. रिसोर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड एज इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स. जितना पैसा वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उतना ही है. देर इज़ नो रेट ऑफ डिविडेंड. क्या होता है, अभी बताया कि इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा उसमें एडवर्टाइज नहीं करते. तो अगर खर्चे भी नहीं करते तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बिकती भी उतनी लिमिटेड है जितने मेंबर्स को पता होता है या जैसे भी होता है. तो जितना प्रॉफिट आता है वो जब डिविडेंड के तौर पे डिक्लेयर किया जाता है आफ्टर कीपिंग मनी फॉर द सोसाइटी, तो बहुत कम होता है. तो नए लोग मेंबर्स बनने में हिचकिचाते हैं. दे आर नॉट रेडी टू बी द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. So there is no rate of dividend, so less people are interested in being the members of the cooperative society. लैक ऑफ सीक्रेसी. ये वाला पॉइंट वापस आ गया. वन मैन वन वोट होता है, ठीक है, हर चीज़ ओपन डिस्कशन हो रही है. जब सारा कुछ ओपन डिस्कशन होगा तो सीक्रेसी कहाँ रह जाएगी? सो देर इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी. एज देर इज ओपन डिस्कशन, देर इज पॉलिसी ऑफ वन मैन वन वोट, दैट इज डिफिकल्ट फॉर द मेंबर्स टू मेंटेन सीक्रेसी. सारी बातें तो आपस में डिस्कस कर लेते हैं ये लोग, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट. मैंने अभी आपको बताया ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड करने से हमारी कॉस्ट तो कम हो जाती है, लेकिन हमारे पास उतने बढ़िया लोग नहीं आते जितने बढ़िया लोग काम करने के लिए आने चाहिए. तो मैनेजमेंट जो है वो हर किसी का फॉर्टे नहीं है. एनीबडी कैन नॉट बी. दोज हु आर लॉरेट और दोज हु आर पायनियर्स इन मैनेजमेंट कैन ओनली वर्क ऑन दोज बेसिस. तो क्या हो जाता है, जब वो अपनी ऑनररी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उतनी एफिशिएंसी नहीं रह पाती. Cooperative societies are unable to attract employees because expert managers or attract and employ मतलब job देना, to give job, right? Give job as high salary has to be paid. ज़्यादा salary दी जाती है. Members offer honorary services. These are voluntary and sometimes professionals may not be involved. Professionals तो majorly involved नहीं होते क्योंकि कोई professional अपनी honorary services देने क्यों जाएगा? वो तो चार्ज करेगा. Honorary मतलब कम free of cost services. ऑनररी बेसिस पे, ठीक है, वॉलंटारीली. गवर्नमेंट कंट्रोल.
Since the government offers privileges, the cooperative society has to comply with the rules started by or stated by the government. Government की बात माननी पड़ती है, जैसे अकाउंट सबमिट करने पड़ते हैं, अकाउंट्स को ऑडिट चेक कराना पड़ता है. तो जो बिजनेस की ऑपरेटिंग फ्रीडम है ना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी मज़े से काम कर सकती थी, वो जो फ्रीडम है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है. दे कैन नॉट वर्क विद दैट मच ऑफ कैपेसिटी. ठीक है, नेक्स्ट आता है. सो दिस इज नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस इन ओपिनियन. सो इंटरनल quarrels arise between members and it may lead to poor decision making. Of course, yes, कभी कभी पर्सनल मैटर्स भी सामने आ जाते हैं. कोई डिस्कशन करी, कोई बात समझ में नहीं आई, मेंबर्स में आपस में लड़ाई हो गई तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन ओपिनियन आएगा. सो समटाइम्स पर्सनल इंटरेस्ट में ऑल्सो स्टार्ट डोमिनेटिंग. कभी कभी लोगों को लगता है कि यार इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, इस तरह का बिजनेस हम क्यों करें. तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, सोसाइटी का वेलफेयर मोटिव खत्म हो जाता है. लोग फिर कहते हैं भैया यहाँ अगर इस चीज़ में पैसा कमा सकते हैं, हटाओ ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला फंडा, प्रॉफिट ही कमा लेते हैं. So there is a difference in opinion because some people may have formed the cooperative society with the intention of welfare of society and others may just start thinking about profit motive. I'll just take 1 minute. First, second, third, and this was your 4th point. This is your 5th point. This is your 6th point. So 6 points of merits. 1, 2, 3, 4 and 5 points of demerits. That's all for right now. We'll start with types of cooperative society in the next video. Bye. See you.